خلافت کی ہم نے بہت ویڈیو دیکھ لی ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ حضرت علی کی خلافت کے اوپر بنائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ 3 خلیفاؤں کی تو بنا لی, لیکن اب چوتھی یہ دا نیو خلافت ہے. اب دیکھتے ہیں کس کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے, تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. اسلام کی تیسری خلافت جیسے ہی شروع ہوئی, رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں نے سوچا کہ اب یہی وقت ہے مسلمانوں کی کمر توڑنے کا, اور ان سارے علاقوں کو مسلمانوں سے واپس چھیننے کا جنہیں حضرت عمر نے ان امپائر سے فتح کیا تھا. کیونکہ ان بادشاہوں کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کی یہ خلافت صرف حضرت عمر کی طاقت سے یہ جو گرین دکھ رہا ہے نا, ٹھیک ہے, یہ پورا اسلامی کنٹری جو مطلب اس خلافت آئی ہے حضرت عمر کے اس میں خلافت. تو سب سے پہلے رومن امپائر کے بادشاہ نے مسلمانوں کے سب سے امپورٹنٹ علاقے ایجپٹ کو چھیننے کا پلان بنایا اور اپنے جنرل مینوئل کو 300 جنگی جہازوں کے ساتھ ایجپٹ کی طرف روانہ کی. کیونکہ ایجپٹ دنیا کا سب سے رچ علاقہ تھا اور پچھلے 600 سال سے یہاں کا سارا گولڈ اور گندم سیدھا رومن امپائر کے کیپٹل کی طرف بھیجا جاتا تھا. لیکن اب حضرت عمر کی خلافت میں ایجپٹ کو فتح کرنے کے بعد یہاں کا سارا مال رومن امپائر کے بجائے مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ کی طرف جانے لگا, اور یہ رومن امپائر کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا. دھچکا, دیکھو اردو کا بڑا دھچکا ہم بولتے ہیں. 300 جہازوں میں رومن امپائر کی بہت بڑی فوج مسلمانوں کے ایجپٹ کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی, اور اس فوج سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اسی لیے سارے مسلمان ایجپٹ کو فتح کرنے والے صحابی اور جنرل عمر بن عاص کی طرف دیکھنے لگے. یہ سب سے امیر تھے نا, تیسرے خلیفہ. یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ حضرت عمر کے بعد مسلمانوں کے جنرل عمر بن عاص کو اس حملے سے پہلے ہی ان کی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا تھا. اصل میں اس سے کچھ ہی سال پہلے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے دور میں پہلی بار ایجپٹ فتح کیا, جسے ہم پورا ایکسپلین کر چکے. ایجپٹ فتح کرنے کے بعد خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص کو پورے ایجپٹ کا گورنر بنایا. لیکن پہلے دن سے خلیفہ عمر کو اپنے اس گورنر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت بڑی شکایت تھی, اور وہ شکایت یہ تھی کہ ایجپٹ دنیا کا سب سے رچ علاقہ ہونے کے بعد بھی حضرت عمر بن عاص وہاں سے مدینہ کی طرف بہت کم ٹیکس بھیج رہے تھے, اور حضرت عمر اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں تھے. بٹ اس سب کے بعد بھی حضرت عمر نے اپنی خلافت کے آخری دن تک عمر بن عاص کو ان کی پوزیشن سے نہیں ہٹایا. لیکن جیسے ہی حضرت عثمان کی خلافت شروع ہوئی, ان کی پرسنالٹی حضرت عمر سے بالکل اپوزٹ تھی, اور بچپن سے ایک بہت بڑا بزنس مین ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان کا سارا فوکس اس خلافت کی اکانومی پر تھا. کیونکہ حضرت عثمان کو پتا تھا کہ اب جنگوں سے زیادہ اس خلافت کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے خلیفہ بنتے ہی حضرت عثمان نے سب سے پہلے ایجپٹ کے گورنر عمر بن عاص کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ عمر, کیا وجہ ہے کہ تم ایجپٹ جیسے رچ علاقے سے مدینہ کی طرف اتنا تھوڑا سا ٹیکس بھیج رہے ہو؟ ناؤ عمر بن عاص کوئی عام انسان نہیں تھا. وہ ہمیشہ سے ہی اپنے زبردست بولنے کے انداز کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھے. اسی لیے انہوں نے حضرت عثمان کے سوال کا بہت ہی یونیک جواب دیا کہ یا امیر المومنین, اونٹنی اتنا ہی دودھ دے رہی ہے جتنا وہ دے سکتی ہے. مطلب ایجپٹ کی عوام جتنا ٹیکس مدینہ بھیج سکتی ہے اتنا ہی بھیج رہی ہے. یہ سن کر خلیفہ عثمان نے عمر بن عاص کو حکم دیا کہ آج کے بعد تمہیں ایجپٹ جانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اب تم مصر کے گورنر نہیں رہے. اور ان کی جگہ خلیفہ عثمان نے ایک چھوٹے گورنر عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کو پورے ایجپٹ کا گورنر بنایا, جو حضرت عثمان کے کزن اور رضائی بھائی بھی تھے, اور ان کا تعلق بھی حضرت عثمان کی طرح بنو امیہ سے تھا. عبداللہ بن سعد نے ایجپٹ کا گورنر بنتے ہی وہاں کا سارا نظام بالکل بدل دیا, اور وہاں کی عوام پر ٹیکس اتنا بڑھا دیا کہ جتنا ٹیکس عمر بن عاص کے زمانے میں یہاں سے مدینہ کی طرف جاتا تھا, اب اس سے ڈبل بلکہ ٹرپل ٹیکس مدینہ کے خزانے میں جمع ہونے لگا. یہ سن کر حضرت عثمان نے ایک بار پھر عمر بن عاص کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کہا کہ عمر, کیا تم جانتے ہو اونٹنیاں تمہارے بعد بہت زیادہ دودھ دینے لگی ہیں. مطلب ایجپٹ سے مدینہ کی طرف ٹیکس بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. یہ سن کر عمر بن عاص نے کہا کہ یس, یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن
ऊंटनियां दूध तो ज्यादा दे रही हैं, लेकिन इन ऊंटनियों के बच्चे मर रहे हैं। मतलब नए ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया ना। अब्दुल्ला बिन साद ने जो टैक्सेस वहां के लोगों पर लगाए हैं, वो इजिप्ट की आवाम पर एक बहुत बड़ा जुल्म है। और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि अब्दुल्ला बिन साद के इन नए टैक्सेस ने इजिप्ट की आवाम को इतना तंग कर दिया था कि आहिस्ता आहिस्ता इजिप्ट के लोग मुसलमानों की इस खिलाफत से नफरत करने लगे। और वहां के लोग पहली बार ये सोचने लगे कि किस तरह मुसलमानों की इस खिलाफत से अपनी जान छुड़ाएं। आखिर एक दिन इजिप्ट के सबसे बड़े शहर अलेक्जेंड्रिया के लोगों ने मिलकर एक बहुत ही सीक्रेट लेटर लिखा उस वक्त के सुपर पावर रोमन एम्पायर के बादशाह के नाम, जिसमें उन्होंने लिखा कि यही वक्त है मुसलमानों की इस खिलाफत पर हमला करने का। कोई सपोर्ट में नहीं था ना उस समय। मुसलमानों पर हमला करेंगे, इजिप्ट की पूरी आवाम मुसलमानों के खिलाफ बगावत कर देगी। इसीलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रोमन एम्पायर के बादशाह ने 300 जंगी जहाज, तलवारों, तीरों और अपनी फौज से भरकर मुसलमानों से जंग के लिए रवाना किया। जैसे ही रोमन एम्पायर की फौज इजिप्ट के सबसे बड़े शहर अलेक्जेंड्रिया तक पहुंची, वहां की आवाम ने इन्हें देखकर मुसलमानों के खिलाफ बगावत कर दी और वो रोमन्स के साथ मिलकर मुसलमानों की फौज को मारने लगे। और बहुत ही आसानी से उन्होंने अलेक्जेंड्रिया जैसी इंपॉर्टेंट सिटी मुसलमानों से छीन ली। सिर्फ कुछ ही मुसलमान ऐसे थे जो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर अलेक्जेंड्रिया से भाग गए और सीधा इजिप्ट के कैपिटल की तरफ गए और जाकर वहां मुसलमानों के गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद को बताया कि पूरे इजिप्ट में मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है। लेकिन अब मसला यह था कि अब्दुल्ला बिन साद एक बहुत ही नए गवर्नर थे और वो इससे पहले किसी भी बड़ी जंग के लीडर नहीं रहे थे। इसीलिए मुसलमानों को इस बात का डर था कि हमारे ये गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद रोमन एम्पायर की इतनी बड़ी फौज से जंग नहीं जीत पाएंगे और इजिप्ट हमेशा के लिए मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए इजिप्ट के मुसलमानों ने मिलकर खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ एक लेटर भेजा कि आप अब्दुल्ला बिन साद को हटाकर उनकी जगह दोबारा अमर बिन आस को इजिप्ट का गवर्नर बनाएं, क्योंकि अमर बिन आस एक बहुत बड़े लीडर और जनरल थे। उन्होंने इससे पहले भी पूरे इजिप्ट को फतह किया था, जिसकी वजह से अब तक रोमन एम्पायर की फौज के दिलों में अमर बिन आस के नाम का खौफ था। ये देखकर हजरत उस्मान सबको लेके भी चल रहे थे ना आपस में, और अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दोबारा गवर्नर बनाकर 15,000 की फौज के साथ रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए रवाना किया। नाउ जो मुसलमान इससे पहले रोमन एम्पायर की फौज के सामने बिल्कुल मायूस हो चुके थे, अब अमर बिन आस को इजिप्ट में दाखिल होता हुआ देखकर वो सब लड़ने के लिए दोबारा तैयार हुए और हजरत अमर बिन आस के हुक्म का इंतजार करने लगे। लेकिन जैसे ही अमर बिन आस मुसलमानों के कैपिटल पहुंचे, उन्होंने मुसलमानों को क्लियरली कहा कि हम जंग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि इजिप्ट की आवाम ने सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला बिन साद के सख्त टैक्सों की वजह से मुसलमानों के खिलाफ बगावत की। बिल्कुल। इसके अलावा उन्हें मुसलमानों से कोई शिकायत नहीं है और यहाँ की आवाम बिल्कुल भूल चुकी है कि असल में रोमन एम्पायर कितनी जालिम एम्पायर है। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों को समझाने लगे कि जब इजिप्ट की आवाम रोमन एम्पायर के जुल्म को देखेगी, वो खुद ब खुद उनके खिलाफ हो जाएंगे और हम जंग के बगैर ही जीत जाएंगे। जो हजरत अमर बिन आस ने कहा था एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। रोमन एम्पायर इजिप्ट पर हमले के बाद यहाँ के हजारों इनोसेंट लोगों को मारने लगी, उनके दुकानों और घरों को लूटने लगी और इवन उनकी औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। इसी तरह जुल्म करते हुए जैसे ही रोमन एम्पायर की फौज मुसलमानों के कैपिटल के करीब पहुंची, वो इस वक्त तक यहाँ की आवाम पर इतना जुल्म कर चुकी थी कि अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे। मतलब इजिप्ट की सारी आवाम रोमन एम्पायर को छोड़कर मुसलमानों के साथ मिल चुकी थी। ये देखकर अमर बिन आस ने फाइनली मुसलमानों को हमले का हुक्म दिया और आखिर एक बहुत खतरनाक जंग के बाद मुसलमान ये जंग जीत गए और रोमन एम्पायर की फौज हमेशा के लिए इजिप्ट को छोड़कर भाग गई। हजरत उस्मान की खिलाफत में मुसलमानों की ये फतह इतनी बड़ी थी कि अगले 1000 साल तक कोई भी मुसलमानों से इजिप्ट नहीं छीन सका और आज तक इजिप्ट मुसलमानों के कंट्रोल में है। हजरत अमर बिन आस ने जंग जीतने के बाद वो सारा माल
इजिप्ट के लोगों को वापस कर दिया जो उनसे लूटा गया था, और अब उनका ये ख्याल था कि फाइनली हजरत उस्मान उन्हें इजिप्ट का गवर्नर बनाएंगे। लेकिन हजरत उस्मान ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्हें एक ऑफर दी कि आज से तुम इजिप्ट के आर्मी चीफ हो गए और अब्दुल्ला बिन साद गवर्नर। लेकिन अमर बिन आस ने उन्हें कहा कि ये तो ऐसी ही बात है कि गाय के सींग मैं पकड़ूं और उसका दूध कोई और लेकर जाए। और ये कहते ही उन्होंने हजरत उस्मान की ऑफर मानने से इनकार कर दिया, और इसी तरह हजरत अमर बिन आस ने एक बार फिर पूरा इजिप्ट फतह कर लिया। नाउ इजिप्ट का मसला तो हल हो चुका था, लेकिन अब खलीफा उस्मान की जिंदगी का सबसे बड़ा वाकया पेश आने वाला था, क्योंकि पहली बार दुनिया के मुसलमान कुरान की किरत के बारे में एक दूसरे से लड़ने लगे थे, जिसके बाद हजरत उस्मान ने दुनिया का पहला यूनाइटेड कुरान बनाया, जिसे आज तक पूरी दुनिया पढ़ती है। सब्सक्राइब। अमर बिन आस जो थे वो सबको लेके चल रहे थे, है ना, कि भाई जिसके ऊपर जितना टैक्स लगना चाहिए उतना ही वो, उनको पता है कि वो लोग कितना दे सकते हैं ना, क्योंकि वो वहां पे इतने सालों से थे, है ना। लेकिन एक नए गवर्नर को आ रहा, उनको पता नहीं उस बारे में कि वो कितना लगा दिया, 4 गुना लगा दिया तो निकलेगा ही, जो टैक्स की पैसा है वो डबल निकलेगा ही। लेकिन एंड में हो क्या रहा है, वहां पे जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, जो लोग, ठीक है, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, चले जाएंगे, तो बिजनेस ही कहाँ होएगा, है ना। तो और बगावत तक पे आ गए लोग, है कि नहीं, कि हम बगावत कर रहे हैं, दूसरों से मिल गए, तो ये सब होएगा। अब वो वापिस आए, फिर उन्होंने वो किया प्योर सिनेमा, मतलब जो आज हमने देखा, ये मूवी बननी चाहिए इन सब के ऊपर, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे, मतलब हर मौके पे इस्लाम में लड़ाई है लड़ाई है, क्योंकि इतना बढ़ गया, ठीक है। और उसके बाद लोग आ रहे हैं ना, देखो वहां पे लोग कब्जा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कौन सा कंट्री थी वो, रोमन, जैसे रोमन है, ठीक है, वो भी तो है साइड में। अगर ये लोग यहाँ पे लड़ाई नहीं करेंगे ना, तो वो रोमन खा जाएंगे आके, समझ रहे हो। तो हर तरफ अरब हक के लिए लड़ना जरूरी है। अरब हर तरफ घिरा हुआ है लोगों से, ठीक है। अब तो इजिप्ट हो गया, पहले अलग अलग थे, वो तो जो पहले के खलीफा है उन्होंने एक साथ जोड़े हैं सबको आके, ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल था। तो ये सब पिक्चरें बननी चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा समझ में आए, ठीक है। और मम्मी के लिए तो ये, को जानने को मिले, मम्मी के लिए तो ये बिल्कुल ही नई चीज है एकदम से। ऐसा है कि जैसे कोई सीधा ही मतलब एंड गेम देख ले, ठीक है, किसी ने मार्वल मूवी का कुछ नहीं पता, सीधा एंड गेम देख ले, तो उसको क्या पता चलेगा कौन आयरन मैन कौन कौन है, ठीक है। तो मम्मी के साथ वही हो रहा है, तो बाकी हम मम्मी को समझा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मम्मी उधर देखो, ठीक है, बाय।